Hi guys, welcome back to my channel. So today I randomly decided to do a vlog. I'm in the car with Siddharth right now. There is a lot of things happening this weekend, so I said okay, why not vlog it out. First, there's stiff going on and right below my building, so that's an exciting event which I'm gonna witness for the first time. Being said that, मैं कल ही मेरी एक आंटी है यहाँ पे टोरंटो में, so I was talking with her that she's going for one of the movies, Homebound, जिसमें Ishan Khattar, Janhvi Kapoor and all, they went for Cannes also for that. So she's going for that movie and I said okay, I don't think so, I'm going for that. There's another movie, Ye Bandar movie, which is in, I think I might go for that, but my schedule was not matching. What happened is, that person who's producing the fucking film, producing, he came to my cafe in the morning and I met him. He gave me his WhatsApp number. He said, Sifat, okay, I don't think so I'll be able to give you tickets because it's all sold out, it's all ticketed, but I can make you meet Bobby Deol. I said, okay, sure. So maybe we can meet Bobby Deol, so that we might go. But stay tuned for that. Let's see के vlog कैसा होगा. अगर आपको फोटो दिख गई तो दिख गई भाई. Anyway, मेरा कल कॉन्सर्ट है शाम को, विशाल शेखर कॉन्सर्ट. मेरा परसों कॉन्सर्ट है आतिफ असलम. So a lot of things are happening this 2-3 days. So I'm gonna vlog it out for you guys. Okay? मेरा बहुत बड़ी इंट्रो होगी. Bye. पता की ग्रेजुएशन के लिए कपड़े देखने जा रहे हैं. Guys, disco or not disco? Tell me. बंद करके देखो. How are you feeling? ये my दिल है. This I love distillery. I love coming to distillery. There's a small store known as Tartistry here, and they have my favorite tart. So whenever I come, so my ritual is I take a coffee at Balzac's. I'll take a tart from Tartistry, and then I'll take a sandwich from Eatly. So this is like my thing whenever I come to distillery. Yay! Got 2 flavors from the Tartistry. I don't know if you can hear me because there's people sitting next to me. I've reached Moss again. Yeah, the lady's pretty loud, so I'm sorry if you can't hear me. But I got 2 flavors, coconut and maple pecan. I'm gonna try in front of you. It looks like this. Oh my god! Wow! Wow! Okay, let me see. Since I've eaten tart from here, tarts have become my favorite thing to have. Literally changed my whole world. This is where I live, and this is the Toronto Film Festival happening. Let's see. ऐसे लग रहा है कि हम लोग स्कूल में बच्चे और नीचे फेयर चल रहा है और क्योंकि लिटरली मेरे घर के नीचे है, तो मैं कभी भी नीचे आके देख सकती हूँ. म्यूजिक इज प्लेइंग एंड पीपल आर रोमिंग एंड इट्स ऑल गाला रहे हैं. So of course it's the next day and it's actually 4 p.m. So Siddharth and we woke up, we've been to gym and I went in full attention to shoot in the gym so that I'll show you guys something. But what happened is we started talking to my trainer. उससे पहले we started talking to mummy. उससे पहले we were talking to this note. We just met Anurag Kashyap. He was just outside, so we got a picture. Siddharth and me. Baki, we messaged Nikhil sir and let's see if he's gonna make us meet rest of the people. Guys, we just saw Bobby Deol. He just walked by straight us. Okay, guys. Which camera? Center there. Here, our main camera. कैप तो निकाल ले. देखो कैप ही अच्छा. कैमरे की क्या? Sibandar. Saw literally a private. We saw the whole fucking podcast of the whole crew. We were standing there for 1.5 hours watching the whole thing. We were not allowed to shoot
but here the pictures, we took pictures with everybody. Missed Sabha and Sapna Babi. I didn't want to take picture with her, but that's fine. I talked to Sani and asked her to come to Mos because she loves matcha. So I hope I get to host her tomorrow. Hopefully, I'm crossing my fingers. I gave my number to the manager, so she has my number. I'm excited. I'm so excited. Wait, I'm getting late for the concert. अभी तो बहुत ज़्यादा late हो रही हूँ मैं. Oh my god, this is like my Bollywood dream. You guys know, I know everything about all of these people who are sitting there because I watch all of these things so religiously. I watch all of the Bollywood podcasts and the interviews. So मेरे लिए तो dream come true है ये. हाँ तो मुझे ये बोलना था कि about the whole thing. I have met, you know, a celebrity before, which is Rupan and all of these people, and I can't tell you, like, this was jo Nikhil Dwivedi. He is one of the sweetest producers I've ever seen, because we have this preconceived notion that these people are very rude, especially producers, or they're very high-headed, but he was not. He made us meet, and he also told Bobby Deol, these are brothers and sisters, they have a cafe, and they're from Ludhiana. Bobby Deol did not react to anything, but this guy made sure that he knows who we are, but he remembered us. And I felt so bad कि he was messaging me in the morning saying I was waiting for your message, और मैंने नहीं किया. मुझे Bobby Deol को तो cappuccino पिलानी थी. I think he was very irritated. He wanted to have coffee and nobody was giving him cappuccino. I want to tell him that he should have the best coffee in Toronto, which is right across. But वो खड़ा ही नहीं हो रहा था still. वो हर जगह पर चली जाता भाग रहा था. हमें opportunity नहीं मिली बोलने की. And Sanya was super sweet as well. I really hope I get to meet him. Anurag Kashyap, उनका सिर फट रहा था तो वो बहुत ही rude था. I want to quickly go and at least park at the venue, क्योंकि मैं लेट हो रही, मुझे लगता है मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी. मेरी सीट इतनी पास में. I've never been to any concert from this close. Oh my, it'll be right here. And yeah, I'm sitting with, I think, these two people, very nice people. I'm sitting. Toronto, you guys are beautiful.
sum up to what happened. So Saturday night of the concert I had terrible migraine concert के बाद, तो मैंने मेडिसिन खाई, मैं सोई. अगले दिन I had to wake up, I had to go get Costco का सामान for मॉस. संडे था एंड उसी दिन मेरे रात को आतिफ असलम कॉन्सर्ट भी था. मेरा इतना हेडेक, मेरा इतना गंदा माइग्रेन हो रहा था वहाँ पे, इसलिए मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी कि मतलब मेरी वीडियो में आवाज़ आ रही नहीं आ रही. बट concert, Vishal Shekhar concert was so good, but there were too many Kalesh happening there, so I was explaining कि हुआ क्या वहाँ पे. तो कॉन्सर्ट में मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, ठीक है, और मतलब 2 फ्रेंड्स थे वो लोग. तो वो आए थे और वो जो लड़की थी, शी वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ शेखर. शी लिटरली फ्लू द सेम डे फ्रॉम लंडन UK टू अटेंड दिस कॉन्सर्ट एंड शी डिडंट इवन नो कि उधर मीट और ग्रीट का ऑप्शन. मैंने उसको बताया कि मीट और ग्रीट है, उसे पता ही नहीं था बेचारी को. तो उसने मेरे सामने टिकट खरीदी, अपने फ्रेंड की टिकट खरीदी मेरे सामने बैठकर. और फिर उसके बाद बिकॉज शी वॉज सच अ वेरी बिग फैन, मुझे तो ऐसा इतना अच्छा फील होता है जैसे अगर मैं करण औजला के कॉन्सर्ट में, मैं अगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे भी, तो मैं इनके भी ऑफ कोर्स बिकॉज आई लव बॉलीवुड कॉन्सर्ट ऑल्सो. मैं सोचूँ मैं इतनी खुश हो रही हूँ. तो बेचारी जो इतनी बड़ी फैन, जैसे डाई हार्ड फैन होता है, जैसे मैं करण औजला की फैन हूँ, वो वैसे ही ये शेखर की है. तो वो मतलब अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, सोचो भाई कितनी बड़ी चीज़ है. और वहाँ पे ऊपर से शेखर इज़ बीइंग वेरी स्वीट टू दिस गर्ल, एंड वो शेखर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा, गाने गा रहा, उसका जैसे कर रहा है, पोज वगैरह कर रहा है. तो मुझे अच्छा लग रहा है यार बंदे को देखकर. और बट बीच में ऐसा सीन हुआ था, वहाँ पे एक बॉडीगार्ड था, ठीक है, मैं उसकी फोटो यहाँ पे लगाऊंगी. वो बॉडीगार्ड था, वो बहुत उसे रोक रहा था, वो बहुत गंदा था बंदा. मैं बताती हूँ उसने क्या किया. मैं इधर ही खड़ूंगी तो क्या कर लेगा, मैं इधर ही खड़ूंगी. उसने ऐसे किया, मुझे इतनी हंसी आ रही थी भाई, पर मेरे को लगता है वाह यार कितनी बड़ी फैन है. मुझे बहुत हंसी आ रही थी. और वो बंदा इतना गंदा सिक्योरिटी था, इतना गंदा. एक तो वो इंडियन भी नहीं था, ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गंदा लग रहा था. ऊपर से एक और कलेश हुआ था वहाँ पे कि एक अंकल थे, मेरे रूम में थे अंकल, और उनके आगे हमारे ना 2 सीट्स छोड़कर आगे आंटीज़ थी, वो चेयर्स पे खड़े होकर डांस कर रही थी. अंकल को बहुत चुल मची और अंकल ने उनकी सीट्स ऐसे हिलाने लग गए. सोचो शादीशुदा आदमी वो ऐसे कर रहा है, सीट्स हिला रहा है उनकी, और उनको सोचो आंटी को नीचे गिर रहा है. इमेजिन. वो कलेश भी हो रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस अंकल को पता नहीं कोई चिड़ मची थी कि वो क्यों खड़ी है ऊपर. मतलब सोचो उसकी वाइफ कितनी एम्बैरेस हो रही है, और वो बोल रही मत कर, और ये कर रहा है ऐसे सीट. सोचो उनकी आगे जाके उनको नीचे गिरा रहे, 2 लेडीज़ को नीचे गिरा रहे. पर हाँ, फिर सिक्योरिटी आई, उन्होंने उसे हटाया. वो सोचो उनकी बड़ी फाइट होगी. जो उन लेडीज़ के भी हस्बैंड या कोई पार्टनर थे, उन्होंने आके मुक्का शुक्का जो भी उनको मार रहे थे, बंदे को हटा रहे थे, धक्का कैसे कॉलर पकड़ रहे थे. पर हाँ, ये कलेश हो रहा है. वो ऊपर कॉन्सर्ट कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है. पर विशाल शेखर कॉन्सर्ट कर रहे हैं, उनको कुछ दिख भी नहीं रहा. और ऊपर से उनका भी म्यूजिशियन नहीं चल रहा, उनके म्यूज़िक ही नहीं चल रहा था बीच में, क्योंकि उनका जो म्यूज़िक टेक्नीशियन था वो आया ही नहीं, उनका वीज़ा ही नहीं लगा. तो उनको लास्ट मिनट जो भी लगा उन्होंने किया. बट शो बहुत अच्छा था, वेरी गुड शो. दिस इज माय आउटफिट फॉर आतिफ असलम कॉन्सर्ट एंड आई होप आई लुक ओके. लेट्स सी. ऐसे होना चाहिए. दिस इज माय लुक. आई थिंक आई एम वेरी टायर्ड कल से ही, और थोड़ा मैंने माइग्रेन से भी, I don't know, my face is not looking very fresh. This is not my best look, and I don't know what should I do. Honestly, this is the best I could do. और वैसे भी 7 o'clock ऑलरेडी हो चुके, गेट ओपन हो चुका है. मैं अभी तक घर से भी नहीं निकली हूँ बाहर. तो मैं थोड़ा सा बस ड्राई शैम्पू थोड़ा सा ब्रश करके आते हैं मेरे को. दिल
मेरे महरबा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे दीवाना तेरे पास चैन जीना इश्क के एहसास में बेख्याली की है तेरी प्यास में चाहे जरूर है कुछ तो जरूर है ये दूरियां जीने ना दे हाल मेरा तुझे ना पता बेच दिया कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ दुनिया में जिस दिन तक वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो क्या हुआ जो मुझ में समाया मुझ तुझ में समाया मौला वही नहीं माया तो धीरे से नींदों के धागे से बना के ख्वाब को तेरे हैप्पी बर्थडे टू यू मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं ना जाने से तू मेरे तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा रोना तेरे बिन नहीं लगता one last time everybody let's go सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना सही जाए एक और शामें गई चांद रोशन था तब आसमां में गई दिल तो आखिर कितना मीठी सी मुश्किल है ना पिया Guys, it's the next day and I think I'm gonna end the vlog here because of course अब तो कुछ हुआ ही नहीं बस कल आतिफ असलम vlog it was आतिफ असलम concert was a very nice one. I was just very I had a very bad migraine but still I was just enduring the pain and enjoying my concert as much as I could. Baki, yeah, I got home and slept. But thank you so much for watching. If you're watching till now, 4 a.m. on 21st of September, and I'm editing this video. बस फ़ोन बस बंद मरने वाला है मेरा. माई बिल्डिंग वॉज आउट ऑफ पावर विच आई डिडंट नो. मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसी उनकी कोई ईमेल आई है इमरजेंसी. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो थॉट इट इज़ ओनली मी. सो आई गॉट स्कैर्ड. आई चेक द लॉबी एंड आई चेक द एलिवेटर्स आर वर्किंग. सो आई थॉट सिर्फ मेरी अपार्टमेंट की लाइट गई हुई है, बाकी सबकी चल रही है. मेरी इतनी चुल मची. मैं सुबह 3:45 AM आई एम गोइंग डाउन टू कॉन्सियर्ज टू आस्क की वाई इज इट ओनली मी और समथिंग लाइक दैट. व्हेन आई रीच देयर आई सॉ देखा मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है. मैंने उनको बोला मेरे पास चार्जिंग नहीं है. मैं नीचे गई और मैं भी इतनी पागल हूँ. मैं 5% पे नीचे जा रही हूँ. ऑफकोर्स मुझे तो सिर्फ ऊपर आना था पर मुझे क्या पता था कि लिटरली सब कुछ बंद है. तो मैं नीचे गई. मैंने देखा कि वो लोग आ रहे, पूरा ग्रुप बना हुआ है और वो लोग मेरे बाद दे आर ट्राइंग टू कम अप. सो आई गॉट स्कैर्ड फॉर 1 सेकेंड क्योंकि मुझे लगा कि मैंने सिक्योरिटी वाली कॉन्सर्ट्स को देखा उधर क्योंकि बहुत फेमिलियर फेस है. मैंने कहा मैंने देखा बट शी वाज नॉट इन यूनिफॉर्म. एंड देन आई एम वेटिंग ऑफकोर्स क्योंकि कॉन्सर्ट्स पे और कोई नहीं है. जब आई एम वेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग बिकॉज कोई एलिवेटर नहीं चल रही. बस एक कॉन्सर्ट है जो ऊपर लेके जा रही. सो आई अंडरस्टूड सिर्फ आई थिंक
she'll be the only person who'll be taking us up. So we are waiting, and she's not coming down. मैं तब से वेट कर रही हूँ, हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं. हमारे मेरे साथ और ग्रुप भी आ चुका है. लकीली 4 AM सैटरडे ने हमारी बिल्डिंग में बहुत ऊपर नीचे लोग आ रहे हैं. मतलब इट इज़ अ लाइवली बिल्डिंग and good building. It's not, there was not bad crowd. So we see, we are waiting for half an hour. There's no security coming down. मतलब अभी तो गई थी, नीचे कैसे आएगी वो, क्योंकि कोई एलिवेटर आ ही नहीं रही. We are waiting. After 30 minutes we saw she comes out from some stairs. She's coming from upstairs. I'm like, what is the situation is, if somebody presses the button of the elevator, कैसे भी like किसी भी फ्लोर पे आपको कोई भी करेगा तो वो लिफ्ट ऊपर जाएगी. The technically we can't, from ground floor you can't go up, but only the elevator can come down. So somebody has to press button of the highest floor. For example, जैसे मैं 42nd फ्लोर पे हूँ तो कोई किसी बंदे को 42nd फ्लोर का बटन दबाना है तो सारी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाएगी. बिकॉज in case of emergency all the elevators have to go down to their main levels, which is ground. So if we stand inside the elevator at ground floor and if somebody presses the button and 42nd, so सब सारे लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब 42nd पे खुद जाएंगे, and then you can accordingly take the stairs up or take the stairs down according to your destination. And that too, stairs अपने आप नहीं खुलती, stairs भी security से खुलती है. तो आपको वो बच्ची बेचारी security की बंदी, उसको हर एक फ्लोर पे जाना पड़ेगा खोलने के लिए, सबके लिए. Imagine. So while we are there, after 30-40 minutes, somebody presses the button of पहले तो एक पिज़्ज़ा वाला आया. पिज़्ज़ा वाला बंदे वो 42nd फ्लोर पे था. लकीली मैं सिर्फ ऊपर सबसे हाईएस्ट पे हूँ, बाकी सारे नीचे 29 से फ्लोर्स वाले हैं. सो उनका इतना भी ज़्यादा नहीं जितना मेरा है, मेरा इतना ऊपर फ्लोर है. तो थैंक गॉड एक लकीली किसी बंदे ने पिज़्ज़ा मंगवाया और वो बंदा 42nd फ्लोर से निकला. बट वो पता नहीं क्या था, द पर्सन couldn't press the button. I don't know, something was happening, but the pizza guy also got frustrated. He left the pizza at the front door and he went. He was also frustrated because that was the only chance that we could go that high. Even I was on the same level as them, so I could go, and then it was very near for everybody else to go. It's very easy for them to go down. हमने और वेट किया. थैंक गॉड एक और लड़का आया. His friend was at 17th floor. He pressed the button, so we went up to 17. Luckily पता नहीं किसी ने 38th या 37th फ्लोर तक भी दबाया हुआ था. सो थैंक गॉड लकीली वी वेंट अप टिल 38th फ्लोर, एंड देन 38 से 42 आई वेंट अप स्टेयर्स एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल वेंट डाउन स्टेयर्स. सो एंड बेचारी दैट गर्ल, शी हैड टू गो एवरी फ्लोर टू ओपन ऑल. पहले वो 42nd फ्लोर तक आई, फिर वो नीचे जाएगी 22nd, फिर एक बंदे को 3rd फ्लोर तक लेके जाएगी. पता नहीं इतना उसको दरवाज़ा खोल के जाने हैं. एनीवे दैट वाज माई नाइट. सो that's it, because it was drama. I thought I had to include in this vlog. So toodles. Don't forget to like, share, subscribe, and I'll see you in my next vlog.